Hello, I'm from Namaskar. So, RRB SOIT officer preparation, how you can do the preparation. So, first of all, the exam level will be hard, easy, medium नहीं आएगा. Exam level will be going to be tough. So, this is the official website of IBPS, and here we are having the notifications. So, this is the syllabus in that we are having the professional knowledge, reasoning, financial awareness, and इंग्लिश हिंदी इन दोनों में से कोई एग्जाम दे सकते हो. देन वी आर हैविंग द कंप्यूटर नॉलेज. ये आपका इजी रहता है. सो यू आर ए बीटेक सीएससी स्टूडेंट और एमसीए स्टूडेंट और एमटेक स्टूडेंट, सो दिस इज इजी. ठीक है, ये आपके लिए इजी है. योर कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, ये इजी है, सिर्फ यही एक इजी है. देन वी आर हैविंग द कंटेंट क्लियर. अब एक एक करके जितने भी टॉपिक है सबके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिकमेंड अ पेड कोर्स. आपको जहां से भी पेड कोर्स मिलता है आपको वो लो. फ्री के चक्कर में आप मत पड़ो. आपको व्हेन यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड यू आर गोइंग टू गेट 1 लाख रुपीज. तो आठ दस हजार रुपए की लगा के कहीं से कोर्स मिलता है. सो डू बाय अ कोर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन फ्रीज. व्हाई? Because these are the RRB. So you can see these are the RRB. So as of now we are having this 43 RRB. But as you know that one state one RRB is also going on. But well, the posting is not defined. So the posting means your rank. Agar rank अच्छी, if your rank is good, if your score is good, then you may get your first preference or second preference. Otherwise, you are going to get any random bank. Let's suppose you are from Andhra Pradesh and you have put this bank on your first priority, but your rank is not good, your score overall score is not good. So maybe you can get this bank. ये भी बैंक आपको मिल सकता है. So this bank is Himachal Pradesh and you are from Andhra Pradesh. So to be very honest with you, posting is all over India and there is no transfer. Once you got this bank, so you have to spend your entire life in this bank only. There is no way that you can transfer. So that's why I request कि exam clear करना important नहीं है. Clearing the exam with good marks, that is important, so that you can get your preference bank, whatever bank you have put on. Okay. So first, professional knowledge. So this is your BTech CC syllabus. So this exam syllabus will be hard. आपका easy peasy नहीं आएगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम जो लेवल रहेगा दैट विल बी हार्ड. ठीक है, एग्जाम आपका हार्ड रहने वाला, इट नॉट विल बी इजी. So what you can do, so in the Google when you hit, let's suppose I have hit operating systems video, I have hit. So I got few videos from very good YouTubers. So one is Knowledge Gate by Sanchit sir and another is uh, coding by Ankush Bhaiya. So like this you can see, uh, from this video it is for only semester exam. This video is only for semester exam. This video is not for this examination because here this sir is going to teach only basic thing, but with the basic thing you are not able to clear the exam. फिर क्या होगा? You are going to waste your entire year. Your whole year is going to be waste. Okay, so now you can see another video operating system in 1 hour. So do you think that in 1 hour we can go with the operating system? No, these are only for basic like your school exam or your BTech exam. This is not for competitive exam. So let's suppose if I show you the syllabus of our computer network. So in our computer network only we are having the TCP, IP, simplex, half duplex, full duplex, our medium. In that we are having twisted pair, coaxial, scheduled, optical fiber, radio optics. Then we are having the network topology, in that mesh, tree, digit, and hybrid. Then complete OSI model, all your layers, and then your complete TCP IP. Then your network devices, how they work, modem, RJ4, Ethernet, cloud router, switch, gateway, Wi-Fi, in depth. आपको क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक से नहीं होगा. देन वी आर हैविंग द multiplexing, FDM, TDMA, and your code division multiplexing. Then we are having the networks type in that PAN, LAN, SAN, MAN, WAN. ये आपको देखना पड़ेगा. Then we are having the network security. Then in that authentication, integrity, your key, your message. Then we are having the switching, circuit level switching, packet level switching, and message level switching. Then we are having the some part of digital electronics. Then we are having the analog to digital to analog. Then we are having some email protocols, how they work, on which port they have, internally how they work, because examiner can ask any question from anywhere. Then various type of firewalls and types of firewalls are important. So like this the syllabus is complete, very big. Even the computer network, as you can see, is very big. Complete IPv4, complete IPv6, the difference, the header,
how the subnetting happen, your CSDR, your congestion control protocols, everything is there. अब क्या सर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें ये तो आपके इंपॉर्टेंट थे, फिर वी आर हैविंग अदर एडवांस टॉपिक दैट आई आल्सो कवर्ड, ठीक है। अब डू यू थिंक दैट इन 1 hour और इन 6 hours वीडियो can you complete this computer network? No. So same here in 6 hours video or in 11 hours video or in 1 hour video, don't think you are able to clear the exam. Okay, तो इन जो है सर इनका कोई आपको पेड कोर्स अच्छा लगता है, सो डू बाय द पेड कोर्स। ये सर इनका कोई पेड कोर्स अच्छा लगता है, सो डू बाय द पेड कोर्स। पेड कोर्स से ही आपका एग्जाम निकलने वाला है, फ्री कोर्स से आपका कुछ भी नहीं निकलने वाला है। फ्री के चक्कर में मत आना। ओके, सो जो भी टीचर अच्छा लगता है उससे आप पेड कोर्स लो। हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व कराता हो, इजी पीजी क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। एंड यू हैव टू स्कोर मिनिमम मार्क्स सो दैट यू कैन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। हर एक का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। देन वी आर हैविंग द रीजनिंग। अब रीजनिंग का लेवल रहेगा क्या सर, रीजनिंग लेवल का रहेगा आपका आईबीपीएस पीओ मेंस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द यूट्यूब, और फिर यूट्यूब पे आपको यहाँ पे लिखना है आईबीपीएस पीओ मेंस रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी टीचर आपको अच्छा लग रहा है, अड्डा के सर अच्छे लग रहे हैं, ओली बोर्ड आपको अच्छा लग रहा है, आपको बैंकर वे अच्छा लग रहा है, स्टडी नीति अच्छा लग रहा है, तो जो भी आपको टीचर अच्छा लग रहा है उनका पेड कोर्स लीजिए। फ्री के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एग्जाम विल बी टफ एंड मे बी बाय जस्ट सेविंग फ्यू हंड्रेड और फ्यू थाउजेंड रुपीज यू कैन लूज द जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज। हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे, सिर्फ कुछ रुपए बचाने के चक्कर में आप, हो सकता है कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो अच्छे मार्क्स से। सो इसके लिए भी आप पीओ मेंस आपको देखना, प्री नहीं देखना। अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर पीओ मेंस लेवल। तो जो मेंस लेवल है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सेम गोस फॉर योर इंग्लिश। इंग्लिश आपका हो जाएगा। इंग्लिश में आपको यहाँ क्या करना है सर, एडिटोरियल देखना है। जितना एडिटोरियल आप देखोगे उतना आपके लिए होगा, वो क्या अच्छे से कर लेना। अदरवाइज यू कैन गो विद द हिंदी। कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ यही पार्ट रहेगा जो आपके लिए इजी आने वाला है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग, वेरी इजी पीजी क्वेश्चंस। Now your quant it again it will be hard level. Same goes for the quant. Whatever teacher you like, you can go with the mains course. उनका मेन कोर्स ले लो आप, प्लीज ले लेना। अदरवाइज फिर वही होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ होल कंप्लीट ईयर। सो आईबीपीएस पीओ मेंस क्वांट, ठीक है। सो जो भी आपको यूट्यूबर अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे अपने आते हैं आशीष अरोरा सर, इनके आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, इनका पेड कोर्स लेना, फ्री के चक्कर में मत आना। फिर अपने ये आते हैं करियर डिफाइनर सर, ओली बोर्ड हो गया, और ये आ गए मैम, आ गए अड्डा के, आ गए मैडम। तो जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनका आपको पेड कोर्स लेना है, फ्री के चक्कर में आप मत आना, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे मैं गया, जैसे ये सब मुझे अच्छे लगे, 20 मैं इस बार अरुण सर, अब इनका भी देखो कहीं ना कहीं पेड कोर्स होगा। बैंक महापैक है, जैसे ये है। तो जो भी आपको कोर्स अच्छा लगता है वहां से आप ले सकते हो। ये क्या खुल गया, फिजिक्स वाला नहीं खोलना था मेरे को, कुछ और खुल गया है। अपन को फिजिक्स में नहीं जाना, मैथ में जाना है, ठीक है। तो जैसे ये है अपने हैं आशीष अरोरा सर, इनके आप ले सकते हो, इनके अच्छे आते हैं कोर्स, ठीक है। जय हिंद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब। तो बैच क्वेरी, यस ऑफिस, ये वाला लिंक है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट कॉन्ट सिलेबस। सो प्री प्लस मीन्स ये आप कोर्स ले सकते हो, बट यही है कि फ्री के चक्कर में मत पड़ना। एक बार आप जिससे भी कोर्स लो, from wherever you are taking the course, just ask the teacher, just consult what are the things that he is going to cover, ठीक है। So this is your, you can say, सिलेबस, ठीक है। ऐसे करके आपको सब चीजें करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। अब मे बी दिस पार्ट इज गुड फॉर यू, हो सकता है कि ये पार्ट अच्छा हो, ये पार्ट अच्छा हो, और ये पार्ट आपका वीक हो, तो इट इज मैनेजेबल। व्हाई? बिकॉज द कट ऑफ इज गोइंग टू डिसाइड बाय द ओवरऑल मार्क्स। हो सकता है किसी में आपके मार्क्स आए कम, किसी में आपके आए मार्क्स ज्यादा, बट यू हैव टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। सो यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सो दैट्स व्हाई every topic is important. Professional knowledge is important, reasoning is important, financial awareness is important, English is awareness,
everything is important. Why? Because the merit is going to prepared by this and only there is single exam. यहाँ पे क्या सिर्फ सर सिंगल एग्जाम रहेगा. Okay, one exam and one interview, that's it. And you may get your preferred RRB, whichever RRB you want to take, you can get that RRB. Okay, so from wherever you are interested, whichever teacher you like, just before buying the course from the teacher, just consult with the teacher one to one, have the interaction with the teacher and just ask your doubts. Then if you like, then only buy the course. ऐसा कोई भी टीचर कोर्स मत ले लो. फ्रॉम विचर जो भी टीचर अच्छा लगता है उनसे आप पूछो कि सर आपका जो कोर्स है उसमें कौन कौन सी चीजें मिलने वाली, कोई आपके कोई डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे. अगर आपको उनका जो भी आंसर वो देते हैं अगर वो ठीक लगता है, इफ यू आर हैप्पी विद द आंसर, देन डू बाय द कोर्स. एंड डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सर्चिंग द इंटरनेट. इंटरनेट पे फ्री वीडियोस देखोगे, टाइम वेस्ट होगा, एक साल आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि ये आपने क्या कर दिया. एग्जाम लेवल विल बी हार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. एंड इन प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस आ क्या सकता है, कंप्लीट बीटेक सीएससी सिलेबस. सिलेबस में लिख देता हूँ यहाँ पे, कंप्लीट बीटेक सीएससी, दिस इज योर सिलेबस फॉर प्रोफेशनल नॉलेज. एंड फिर आता है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस. फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या आता है सर, आपके जैसे आरआरबी क्या है, आरआरबी एक्ट क्या है, ठीक है, आरबीआई एक्ट क्या है, आरबीआई के जो सर्कुलर्स आते हैं वो क्या है. एंड फिर आपको जीके देखना है, तो एक साल का आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का जीके देखना रिलेटेड टू फाइनेंशियल अवेयरनेस. यू हैव टू वॉच द जीके 1 ईयर कंप्लीट. इतना आप कर लो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.